Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Ripasha Kandaraba. Ria so prahala ria hazia piandara namashoko prahandara namaso praha. Ria ko prahaziandara namashia kasiandara nama. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Ripasha kapraha. Rianduru namaso prahandara namashike. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Rihi pihaza prahandana ku prahondana mahashiyantarava. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Dhanyavad Prabhu ji. Dhanyavad Prabhu ji. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Riya basha prahandana ko prahonduru riya shandaraba. Riyandara namaso prahandara namashikyandara namashike. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Rihazo prahandara bashikiriyandara nama. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. Rihaza prahanda namashiya kapra. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ripa shabrahandara namasi kendere bihasi pralaraba. Riyanduru namoshoko prahandara namasi kendereya. Rihandara namashi prahanduru kuluriyarabashike. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Oriyazia prahandara namashoko prahandara nama. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. रिहंदरा नमाशिखे प्रहा रिहाजो प्रलरबाशिखे. रिया प्रहंदरा खुलुरियंदरा नमा. रियंदरा नमाशिखे. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन को आप ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग बरकत और आशीष को पाएं. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. जितने यहाँ लोग जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन को आप ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस वचन को सुने. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Within 5 minutes हम इस मैसेज को मैं शेयर करूंगी. जितना हो सके आप इस लाइव सेशन को आप शेयर करें. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. रियंदरा नमाशि खाप्राहा रियाहा सोप्रलराबाशियंदा खाप्रा. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे जिंदा परमेश्वर. धन्यवाद अब्बा जी. धन्यवाद मेरे खुदावन.
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, आपकी महान दया के लिए मेरे खुदावंदा। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे जिंदा जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। क्या ही पिता सुंदर समय है पिता, जब आपके नाम को लिया जाता है मेरे अब्बा जी। पिता मेरी मदद करें और सहायता करें, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा मेरे बीच में से होके बोले, मेरी जीपा को छू पिता परमेश्वर से आग के शोले के समान इस्तेमाल कर, और जितने लोग सुने पिता परमेश्वर खुदाबंद पिता, उनके दिल बदले मेरे पिता परमेश्वर खुदा, उनके हृदय में ये वचन जाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मदद कर और सहायता कर मेरे खुदावंदा। धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आपके एंजल्स इस जगह पर मौजूद है, आपके डिवाइन एंजल्स, आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक इस जगह पर मौजूद है खुदावंद पिता परमेश्वर। आप मेरी मदद करें मेरे खुदावंदा, मेरे जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो तेरे वचन से बाहर हो मेरे खुदा। मेरे सिर पर तेरा बड़ा हाथ होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता, और जितने तमाम लोग हैं मेरे खुदावंदा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तेरे पाक पवित्र लहू में छुपाती हूँ मेरे सामर्थ्य पिता। अपने आप को, अपनी फैमिली को पिता परमेश्वर तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ मेरे यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा जी मेरी मदद करना, जिस तरह आपने यिर्मयाह की मुंह को छुआ मेरे खुदावंद और कहा कि मैं अपने वचन तेरे मुंह में डालूंगा, जो मैं चाहूंगा वो तुम बोलोगे और तुम्हें बोलना होगा मेरे सामर्थ्य पिता। उसी तरह आज मेरे जीवा को छू, अपने वचन मेरे मुंह में डाल, ताकि मेरे खुदा लोग जाने कि तू एक जिंदा परमेश्वर है मेरे खुदा बा। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई को मांगती पवित्र आत्मा मेरी मदद कर और सहायता कर खुदावंदा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे खुदावंदा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जगह पर मौजूद, आपके स्वर्गदूत इस जगह पर मौजूद हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे अब्बा जी। मैं विश्वास करती हूँ इस लाइव सेशन को मैं आपके जोरावर हाथों में सौंप देती हूँ। तमाम लोग वो जुड़े खुदा, जिन्हें आज वचन की जरूरत है पिता परमेश्वर, वो समझे खुदा कि आप उनके साथ है मेरे खुदावंदा। मदद कर और सहायता कर खुदावंदा। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा, आप इस जगह पर मौजूद है मेरे खुदा। इस लाइव सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप चलाएं मेरे खुदा, मैं नहीं, आप चलाएं
खुदाबंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे अब्बा जी, धन्यवाद मेरे खुदा, पिता परमेश्वर, खुदा आपका धन्यवाद। और इस प्रार्थना को मेरे खुदा पर मैं विश्वास करती कि आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यह प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हैं और बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है मेरे पास। और मैं इस लाइव सेशन को आज एक टेस्टिमनी के साथ में शेयर करती हूँ। कई बार हम टेस्टिमनी अपलोड करते हैं तो कोई बड़ी होने के कारण कोई सुनता नहीं है, इसलिए मैं टेस्टिमनी के साथ आपके साथ इस लाइव को शेयर करूंगी। मेरी टेस्टिमनी नहीं है, ये टेस्टिमनी एक सिस्टर की है जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि वो सिस्टर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। हमारा विश्वास कितना है, आज यहाँ पे मेरे भाई मेरी बहनें जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मेरे बुजुर्ग जितने जुड़े हुए हैं, मेरे छोटे जो लोग, छोटे जो बच्चे हैं वो भी अगर जुड़े, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन में कभी भी आपके साथ कोई हो या ना हो, पास्टर हो या ना हो, खुदावंद हमेशा आपके साथ है। उसने ना तो कभी आपको छोड़ा है और ना ही कभी आपको त्यागा है। वो आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। ये बात कोई भी पलट नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक एक वचन जो उसके मुंह से निकला है कभी नहीं टलेगा बिना पूरे हुए। हालेलुया। और अगर आप आज विश्वास करेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे विश्वास को देखेंगे कि एक बड़े लेवल पे। ये नहीं कि आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा और मुर्दों को जिंदा करता है, ये वाला विश्वास नहीं। एक बड़े लेवल वाला, एक बड़ा लेवल जिसमें कुछ हो या ना हो, वो मेरा है पिता और मेरा ही रहेगा। हालेलुया। सिस्टर की ऐसी टेस्टिमनी है और वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। हालेलुया। जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और उनके घर में दुष्ट आत्मा काम करती थी और वो उनकी 2 बहनें भी हैं, दुष्ट आत्माएं उनमें काम करती थी। और उस लेडी में, उस जो बहन है उसमें भी दुष्ट आत्मा काम करती थी। और जो कहते धीरे धीरे वो बोर्न क्रिश्चियन थे। हालेलुया। बोर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुदा को, बोर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हम क्रिश्चियन तो थे, लेकिन यीशु मसीह का जो जीवन होता है ना, वो जिंदगी का जीवन, वो हमारे अंदर नहीं था, वो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं था। हालेलुया। और क्या देखते हैं कि वो सिस्टर ने बताया कि जैसे जितनी दुष्ट आत्मा इतने बड़े तरीके से उनमें काम कर रही थी। शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है उनकी। उन्होंने क्या कहा कि धीरे धीरे किसी ने हमें बताया यीशु मसीह के बारे में, चर्च के बारे में बताया। जानते तो थे, लेकिन परमेश्वर को अपने अंदर कैसे लेना है, किस तरह हम उसके वचनों पर चल के, किस तरह हम परमेश्वर के वचनों पर चल के उसको कहते हैं कि परमेश्वर को जानना और उसको अंदर से उसको लेना, अपनी आत्मा में समाना, वो एक अलग बात होती है। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मेरी बहनें तो छूट गई, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। उन्होंने कहा कि मैं एक सांप की दुष्ट आत्मा मेरे अंदर काम करती, और कहते कि सांप जो थे मेरे मुंह में अपना मुंह डाल लेते थे। हालेलुया। और मेरे घर वाले देखते रहते थे, क्योंकि डर के मारे। कहते मैंने बहुत डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स भी इस चीज का इलाज नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक दुष्ट आत्मा का काम था। और उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसी चीज है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम जब चर्च गए और चर्च में जाने के बाद क्या हुआ, पास्टर लोग भी हैरान थे कि इसमें कौन सी कैसी दुष्ट आत्मा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ऐसी थी, एक सांप की दुष्ट आत्मा उनमें काम करती थी उस सिस्टर में। आज वो सिस्टर पास्टर और कलीसिया चला रही हैं और सिस्टर 18 साल की हैं। हालेलुया। इतनी बड़ी एज नहीं है, सबसे मेन बात है कि 18 साल की वो सिस्टर है।
और 5 साल से वो अपनी वो चर्च चला रही है। हालेलुया। आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि जो पास्टर लोग थे वो भी हैरान थे और पास्टर लोग भी उनको छोड़ के चले गए। कहते कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल। कहते कि मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना करो, ये दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। वो दुष्ट आत्मा इतने कहते बड़े तरीके से काम करती। वो जो सांप है, वो सांप की जो चमड़ी होती थी वो उन पे चढ़ती थी, पैरों से लेके ऊपर तक चढ़ती थी। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि इतनी गंदी रीति से वो दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। मेरे दोनों पैर जुड़ गए थे और एक सर्प की जैसे पूंछ होती है वो बन गई। हालेलुया। वो सर्प की पूंछ बन गई और मेरे पैर दोनों जुड़े हुए थे और इतना मोटा मोटा सर्प का जो मांस होता है ना, वो चमड़ी मेरे ऊपर चढ़ती थी। और मैं गिनती थी 9 दिन बाद वो चमड़ी उतरती थी। और जब उतरती कहते मुझे इतनी पेन होती थी ना, कहने की कोई हद नहीं। और जब जो पास्टर्स लोग हैं उनको बुलाया, कहते कि पास्टर लोग भी चर्च लोग कहते उस टाइम बहुत कम चर्चिस थी, इतना बड़ा खुदा, इतना ज्यादा खुदा का नाम नहीं था। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, कहते कि वो चर्चिस वाले वो चर्च बंद कर देते थे। चर्च वाले उन्होंने चर्चिस बंद कर दी। चर्च वाले जब चर्च लेके जाते थे चर्च बंद कर दी। और पास्टर लोगों ने प्रार्थना करनी, कहते कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगी। कहते उन्होंने अपना विश्वास को ऐसे रख दिया कि हो ही नहीं सकती। कहते पर मुझे विश्वास था कि ये परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। मुझ पे आप दुआ करो, मेरे लिए रोजे रखो ताकि मैं चंगी हो जाऊं। कहते मेरे अंदर विश्वास था, लेकिन जो पास्टर लोग थे उनमें वो विश्वास नहीं दिख रहा था मुझे। हालेलुया। आप समझिए, पास्टर लोग अपनी वो जो चीज है उसे छोड़ सकते हैं, पर आपका जो मेन खुदा के साथ रिश्ता है ना, वो कभी भी कम नहीं हो सकता अगर आप विश्वास करें। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा हुआ कि मैं एकदम से शॉर्ट में बता रही हूं मैं, तो उन्होंने कहा कि इतना मेरी गंदी तरीके से वो दुष्ट आत्मा काम कर रही थी और वो मांस, वो जो सांप का जो मांस था, मेरी दोनों पांव मेरे ऐसे जुड़ गए थे और एकदम से वो काम करना, दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू किया। और कहते कि जो पास्टर लोग जो आते थे वो रोड लेते थे और मेरे चमड़ी को, वो सांप की जो चमड़ी थी उसे उतारते थे। और कहते मुझे इतनी पेन होती थी, वो समझते थे कि ये दुष्ट आत्मा है, लेकिन वो सिस्टर बोलते थे कि मैं हूं, अभी दुष्ट आत्मा नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। इतनी गंदी दुष्ट आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर रही थी। कहते कि सब लोगों ने छोड़ दिया, जिस घर में रहते थे उन्होंने कहा कि इसे निकाल दो, नहीं तो हमारे जो बच्चे वो डरते हैं। हालेलुया। चर्च वाले कहते थे इसे चर्च मत लेके आना, नहीं तो हमारी दूसरी जो कलीसिया है वो डर जाएगी। हालेलुया। कहते कि मुझे विश्वास था कि खुदावन तूने शैतान के सिर को कुचला है और ये पूंछ जो फड़फड़ाती है मैं इसे कुचलूंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उनके अंदर इतनी विश्वास की जो वो पावर थी। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। कहते एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद आप मुझे चंगा करें, मैं आपके जलाल को, क्योंकि कहते कि मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी, कहते कि मुझे पता था कि मेरी सांसें कितनी रह चुकी हैं। मैंने उनको कहा कि मैंने खुदा को कहा, कहते कि खुदा मरने वाली तो मैं हूं ही, मैं आपके जलाल को देखना चाहती हूँ, मैं आपके उस जलाल को देखना चाहती हूँ कि आप वो जिंदा परमेश्वर हैं, मैं चखना चाहती हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मैंने परमेश्वर से कहा खुदा मुझे अपना जलाल दिखाए, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, मरने से पहले मैं तुझे तेरी उस सामर्थ्य को मैं महसूस करना चाहती हूँ। हालेलुया। उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा, कहते कि थोड़े दिन बाद कहते मैं दुष्ट आत्मा मेरे अंदर एक गंदे तरीके से काम कर रही थी। कहते मैं धीरे धीरे मेरी एक कमरे में मुझे रख दिया गया और कमरे में रखने के बाद कहते मेरी पूरी जो
चीज थी, जो लेग्स होती हैं, कहते वो दोनों चिपक गई थी। हालेलुया, वो दोनों चिपक गई थी और मांस ऊपर चढ़ा हुआ था, एक पूंछ बनी हुई थी सांप की। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस टाइम उनकी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी उसके आसपास नहीं था। अगर कोई उसे देखता था वो डरता था। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि एक जिसकी हालत ऐसी हो तो उसकी हालत क्या होगी। एक बंदा बीमार है, उसका सिर दर्द अगर हो रहा है तो वो खुदावंत पे विश्वास नहीं रखता, ये परमेश्वर है, इसने मेरा सिर दर्द चंगा नहीं किया। हालेलुया। ये नॉर्मल है, ये सर्दी जुकाम से भी सिर दर्द हो सकता है, लेकिन कईयों का ठीक नहीं होता कि जिसदा परमेश्वर ही नहीं है, इसने मेरा सिर दर्द ही नहीं ठीक किया। लेकिन वो इतनी पेन में होने के बावजूद भी उनका विश्वास देखिए कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करेंगे। और कहते कि मैं पूरी तरह से डेड हो चुकी, मैं मर चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ, कहते कि मेरी फैमिली ने क्या किया कि मुझे 9 दिन तक ऐसे ही मेरी बॉडी को रखा और प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर आप इसे चंगा करें, ये आपकी है। अगर जिंदा हुई तो भी आपकी है, मर तो चुकी है तब भी आपकी है। कहते कि 9 दिन बाद कहते मेरे में ऐसी सांस आई, एकदम से सांस आई, और जो देखने वाले थे वो हैरान थे कि ये तो मर चुकी थी, ये जिंदा कैसे हो गई। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने एक वादा किया था उस सिस्टर ने कि परमेश्वर अगर तू मुझे चंगा करता है तो मैं तमाम उम्र तेरी सेवा करूंगी। हालेलुया। कहते फिर उसके बाद फिर से वो चमड़ी आनी शुरू हुई। तो कहते उसके बाद जब आई, उसके बाद दोबारा वैसी पूंछ नहीं बनी, वो दोबारा मेरे ऊपर ऐसी सांप की चमड़ी नहीं चढ़ी और दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के जा चुकी थी। ये सिस्टर खुद लड़ी, पास्टर लोग हार चुके थे, चर्चेस वाले हार चुके थे, लेकिन अगर आपका विश्वास खुदा पर है तो खुदा आपको कभी अकेला नहीं कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस सिस्टर ने बताया जब मैं ठीक होके वापस अपने घर आई ना, तो मेरी एक आई थिंक उनके जो चाची थी 7 साल के, कहते कि दुष्ट एक ऐसे अपने गुप्त रोग से वो ग्रसित थे। कहते जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो एकदम से घिर पड़े और उनकी वो बीमारी उनको छोड़ के जा चुकी थी। एकदम से उनमें इतनी सामर्थ आ गई उस सिस्टर में। आज वो सिस्टर 18 साल की, वो सिस्टर 12 साल जो जितनी छोटी एज में दुष्ट आत्मा ने उन्हें पकड़ा था, आज 5 साल हो चुके हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि वो चर्च चला रही हैं और कितने लोगों को वो परमेश्वर के करीब ला रही हैं। हालेलुया। कितनी वंडरफुल टेस्टिमनी है। आपको पता है ये चीजें हमारे फेथ को बढ़ाती हैं, कोई हमारे पास हो या ना हो, हम कितने भी पेन में क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें चंगा करने की ताकत रखता है। वो एकदम से डेड हो चुकी हैं, 9 दिन बाद उसमें जान आ रही है। कहने तो हम कुछ भी कह सकते हैं, वो 9 दिन अगर उसके घर वाले समझते ये मर चुकी है, उसको साड़ दो, कुछ भी कर दो, तो वो क्या एक चीज है कि वो विश्वास नहीं है। वो परमेश्वर को खोज सकते थे कि परमेश्वर तूने चंगा नहीं किया, ये नहीं किया, पर उन्होंने प्रार्थना ही की और प्रार्थना के बाद उसमें फिर से जान आई। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर पर भरोसा कितना है। हालेलुया। कितना हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फिर से वही बात, 2 दिन से पहले भी मैंने लाइव किया अपने पेज पे और वहां पे भी मैंने खुदा के साथ वफादारी की बात की, और आज फिर से वचन मैंने कुछ और निकाला है लेकिन आत्मा कुछ और बात कर रहा है। आप कितने वफादार है परमेश्वर, कितना भरोसा है आपका परमेश्वर पे। हालेलुया। कितना आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं कि खुदावंद मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। कितना हम कहते हैं कि अगर मुसीबत यहाँ तक भी आ जाए तो हम कहते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा खुदा है, तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। हमारे मुंह से कुछ ऐसी गलत बात नहीं निकलती कि तू जिंदा परमेश्वर नहीं है। वो बाप है, बाप था और है और हमेशा रहेगा। हम कई बार वचन को सुन सुन के उख जाते हैं।
हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम खुदावंद पर जो हमारा विश्वास होता है ना, मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी सिस्टर जुड़ी हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मैंने कभी प्रेयर ही नहीं की। बहुत बाई चांस अगर मैंने उनकी रेयर प्रार्थना की हो कि हाँ अब मुझे लगता है कि जरूरत है, वरना जब भी पहली दफा अगर किसी से बात हुई है, मेरी एक सिस्टर से बात हुई थी, मैंने उनको सिर्फ एक चीज खुदा ने गाइड की, आप फेथ रखें। हालेलुया। क्या उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आज उनका विश्वास एक ऐसे लेवल पे है, यहाँ पे पहले उनका, मेरे मिलने से पहले उनका विश्वास यहाँ था, एक डाउन पे था, लेकिन विश्वास यहाँ पे आ गया। परमेश्वर को कितना ब्लेस किया आप सोच नहीं सकते। सिर्फ एक विश्वास, हम चंगियाई की तरफ भागते हैं, कितना हम कहते हैं कि हमें चंगियाई चाहिए, हमें घर चाहिए, बात चाहिए। उस सिस्टर ने सिर्फ विश्वास पे काम किया, और पहले सिस्टर का अपना घर नहीं था, अब उनका अपना घर भी है। हालेलुया। विश्वास एक ऐसी चीज है कि अगर आप विश्वास करें, नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर देती है वो। हालेलुया। आपका फेथ कितना है ये डिपेंड करता है कि आप कहां तक जाएंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो बॉडी है ना, इसमें दुख भी आएंगे और इसमें सुख भी आएगा। अब दुख आए तो ये नहीं मैं कह सकती कि तू परमेश्वर नहीं है। अगर दुख आया है तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, तो मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। मेरे शरीर में कोई भी रोग, कोई भी दुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप ये कन्विंस कर सकते हो, आप ये वर्ड्स को बोल सकते हो, ना कि ये बजाय कि वो मेरा खुदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तमाम लोग ऐसे ये चीजें बोलते हैं। आप अपने वचनों से अपनी जिंदगी को बहाल भी कर सकते हो और उसको खराब भी कर सकते हो। ये सब आपके वर्ड्स का खेल है कि कितना आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। हम क्या मना रहे हैं? हम क्रिसमस मना रहे हैं। हालेलुया। हम क्रिसमस का ये दिसंबर मंथ मना रहे हैं और बहुत जोरों शोरों से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हर दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना सकें। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना एक अलग बात है, पर सेलिब्रेशन भी खुदा को तब अच्छी लगती है जब आप उस पर विश्वास करते हो। अगर आप विश्वास ही उतना करते हो तो खुदा भी कहेगा पहले तू विश्वास कर, पहले मुझे अपने जीवन में आने तो दे, तब ये सेलिब्रेशन मुझे अच्छी भी लगेगी। पहले मैं तेरा दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कितनी देर से खटखटा रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल खटखटा रहा हूँ, लेकिन तू अपने दिल का दरवाजा तो खोल नहीं रही। यहाँ तू अपने दिल का दरवाजा खोल तो रहा नहीं, पर मैं आऊं कैसे? और तू क्रिसमस मना रहा है, मेरे जन्मदिन को मना रहा है कि मैं जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, और मुर्दों में से जुटा, मैं तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, यीशु मसीह हमारे लिए आया। हालेलुया। हम सुसमाचार सुनाते, पर मैं तेरे जीवन में हूं ही नहीं। सुनने में कितना अजीब लगता है, यीशु मसीह जीवन में नहीं है, पर हम उसका सेलिब्रेशन, हम उसके जीवन के, उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, है ना। आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये सेलिब्रेशन भी खुदा को, हम लोगों को तो अच्छी लग रही है, हम घरों को देखते हैं, हम कितना कुछ करते हैं, पर सेलिब्रेशन खुदा को तब अच्छी लगती है जब खुदावंद उसके जीवन में हो, जो मना रहा है। और कुछ सेलिब्रेशन ऐसे करते हैं ड्रिंक करके, स्मोक करके, पब में जाके, नाच के, जो ऐसा कुछ करके जो खुदा को पसंद ही नहीं है, जो खुदा की नजर में ये कहते हैं कि मैं ऐसी चीजों से, पाप से तो खुदा नफरत करता है, पर हम पाप करके ही कहते हैं कि हम तेरे बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कब तक हम मनाते थे और मनाते आ रहे हैं, आगे भी मनाते जाएंगे, आगे भी मनाते जाएंगे हम। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मना तो रहे हैं, पर क्या यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं अपने आप को जांचें कि खुदावंद आपके जीवन में है तो आपका ये क्रिसमस सफल है। अगर खुदावंद आपके जीवन में नहीं है तो जांचें पहले अपने आप को,
जांचें अपने आप को कि हम ये जो मना रहे हैं, जिस खुदावंद का मना रहे, क्या खुदा मुझसे खुश है कि नहीं? हालेलुया, क्या वो मुझसे खुश है? एक वचन बता ही देती हूं, फिर कुछ लोग कहते कि वचन में से तो बात ही नहीं की। आपको एक चीज बताती हूं, यहां पे अब वचन के बीच में से मैं बात करूं तो बाइबल में लिखा है, शॉर्ट में बताऊंगी आज। विवाह भोज का दृष्टांत यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाई, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। हालेलुया। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया, उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। हालेलुया। फिर उसके बाद उसने कहा, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया। विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और डांट पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए कम है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे एक स्टडी चल रही है आज, अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में आपको एक चीज बताती हूँ, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में हमसे बात की है। यहाँ पे लिखा है कि विवाह के लिए फिर से दोबारा पढ़ते, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा, निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। अब प्रभु का प्रचार हम कर रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं कि लोग क्या है, जो परमेश्वर के भुलाए हुए लोग हैं। आप में से जितने विश्वासी लोग हैं, बपतिस्मे पाए लोग हैं और परमेश्वर ने आपको भुलाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में आ ही नहीं सके। और परमेश्वर ने जिनको बुलाया ही नहीं था, जिन्होंने जाना ही नहीं था, वो परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। और वो एक शॉर्ट में बताने, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और वो एक जो जन जिसको बुलाया भी गया है, और वो बंदा जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, उसको वस्त्र भी दिए हैं, पूरी रीति को बताया गया कि तूने कैसे आना है, कपड़े भी दिए गए, सब कुछ तैयार है। लेकिन वो क्या है, वो कपड़े भी नहीं उसने पहने और सीधा मुंह उठा के आ गया। और जब उससे पूछा गया कि क्या बात है, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें विश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन पीछे बैक स्लाइड हो सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, जिनको बाद में पूछने भी कोशिश की, आपको वस्त्र दिए गए, आपको यीशु मसीह को बताया गया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम में आना चाहता हूं। वो परमेश्वर ने अपने भोज में उनको बुलाया भी, लेकिन वो आए पर उन्हें ग्रहण नहीं किया। उसको बताया गया, उसको बोला गया, पर उन्होंने क्या किया, वो नहीं आना चाहा। फिर से वही उस चीज पे कहते हैं कि उसने कपड़े ही नहीं पहने,
बाइबल में लिखा है, जब राजा तिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र ही पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? हालेलुया। अब वस्त्र क्या है? यहां पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको मैं पूरे डेफिनेशन के साथ आपको यहां पे बता नहीं सकती, क्योंकि एक छोटा सा मैसेज, ये वचन बहुत छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा निकलता है। टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। हे मित्र, तू बिना वस्त्र, तू विवाह का वस्त्र पहने क्यों नहीं आया? अब विवाह का वस्त्र जो परमेश्वर की जो रीति है कि हमने अगर जाना है स्वर्ग में तो उस वस्त्र को परमेश्वर यीशु मसीह को पहनना होगा। हालेलुया। कोई भी मुंह उठा के नहीं आ सकता। अब परमेश्वर ने सबको बुलाया, उस बेचारे उस जो गरीब लोग हैं सबको बुलाया, कहते तू आओ। जिसको बुलाया था वो तो आई नहीं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि वैश्या लोग, जो बुरे लोग, ऐसे परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनको मैंने बुलाया, जिनको मैंने चुना, लेकिन वो अयोग्य करार कर दिए गए, क्योंकि घमंडी हो सकते हैं, मैं नहीं आऊंगा। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घमंडी हैं, जिनकी पदवी ऊंची हो चुकी है लेकिन वो घमंड से भर चुके हैं, मैं नहीं आऊंगा। पर लेकिन उन लोगों को बुलाया जो बाहर के जो लोग थे, जो चुराहों के जो लोग थे, वो आगे परमेश्वर के साथ भोजन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास कर लिया कि तू जीवता परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने ही उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। कितनी बड़ी यहाँ बात है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने ही नहीं विश्वास किया, लेकिन जो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने झट से खुदा को परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्होंने वो ब्लेसिंग पाई जो हमने भी वो नहीं पाई। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पीछे से आते हैं, देखा कभी आपने? हम सालों से परमेश्वर के पीछे हैं। किसी को 10 साल हो चुके हैं, किसी को 20 साल हो चुके, किसी को 6 साल, अभी किसी को 3 महीने ही हुए हैं, तो वो परमेश्वर उसको ऐसी ब्लेसिंग दी है जो हमें भी नहीं मिली। हालेलुया। उनका विश्वास देखिए। कई बार मैं खुद ऐसे देखती हूँ, मेरे जो साथ हमारे जो हम जब खुदा में आए थे, बहुत ऐसे जो हमें लाने वाले लोग आज मुझे बैक स्लाइड दिख रहे हैं, हमें लाने वाले, और हम पीछे से आए, खुदा ने कैसे आगे कर दिया। ये खुदा की सबसे बड़ी दया थी, दया है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके, इस पूरे एक एक वर्ड्स का एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि परमेश्वर यहां पे पूरी रीति से बात क्या कर रहा है हमारे लिए। हालेलुया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। बाइबल में लिखा है कि यहां पे मेरे भाई बहन जितने जुड़े हैं और इस टीम के मेंबर्स भी, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस मुझे पूरी देख रही है, मैं उससे भी पूछना चाहती हूँ। तो एक चीज है कि ये मत कहिएगा कि मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ हमारी नॉलेज बढ़ने के लिए। जब मैं आज प्रकाशित वाक्य पढ़ रही थी, तो प्रकाशित वाक्य में पढ़ा जब मैंने, तो वहां पे एक चीज लिखी हुई थी। आपको पता है, मैं सच बता रही हूँ, इन 10 सालों में मैंने बहुत बार प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, लेकिन इतनी गहराई से मैंने कभी नहीं पढ़ा, और जितनी गहराई से मैं आज पढ़ रही हूँ, आज मैंने पढ़ा, इतनी गहराई से सच मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी गहराई से नहीं पढ़ा, ये सच बात बोल रही हूँ। और जब मैं आज पढ़ रही थी तो खुदा मेरे दिमाग में ना एक चीज घूमी। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 7 आयत में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ, सॉरी ये वाला नहीं है, रुको मैं बताती हूँ, 1 मिनट।
हाँ, एक्चुअली वचन ये नहीं था, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता के यहाँ से जाऊंगी और आप सोचना इसको क्या हो सकता है, पूरा बताऊंगी नहीं मैं। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 7 आयत में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये प्रकाशित वाक्य की बात हो रही है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक पे है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वहां पे जब आदम और हवा थे आदम की वाटिका में, तो परमेश्वर यहोवा ने एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम इस पेड़ का भले और बुरे जो ज्ञान का जो पेड़ का फल था उसे मत खाना, और बाकी वृक्ष के तो फल खा सकता है लेकिन इस वृक्ष का तो फल मत खाना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन शैतान ने हवा को भरमाया, उसने वो फल खाया और परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का फल भी वहीं पे था। और परमेश्वर ने कहा कि अगर ये खा लेगा, ये इंसान ये फल खा लेगा तो वो अमर हो जाएगा, उस अनंत जीवन हो जाएगा। तो उन्होंने वहां से उसे उठा के स्वर्ग लोक में लगा दिया और कुरूप उसके इर्द गिर्द। और जो उसको आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति 3 उसकी 24 में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया, कोई उसे छू ना पाए और कोई उसे खा भी ना पाए। ये बाइबल की टीचिंग है और बहुत कम लोगों को समझ आएगी। जितने लोगों को समझ आएगी कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीवन का जो फल है और स्वर्ग लोक में है, वो परमेश्वर ने स्वर्ग लोक में वो लगा दिया। अब वो जीवन का जो पेड़ है वो क्या है, हम उस पेड़ में कैसे खा सकते हैं। हालेलुया। जो जीवन का पेड़ है स्वर्ग लोक में, क्या हम जब यहां से हम मर जाएंगे, हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, यहां से हम जब जाएंगे तब हम परमेश्वर के साथ हम उस जीवन को व्यतीत करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो फल खाने को दूंगा, तब हम वो फल खाएंगे। अब बात यहाँ पे है, आपको एक क्वेश्चन मार्क देके जा रही हूं मैं यहां से। हालेलुया। ये क्वेश्चन मार्क है कि वो जीवन का जो पेड़ है वो है क्या, कैसे हम फल खा सकते हैं, मर के खाएंगे या अभी खाएंगे, कैसे। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ा रहस्य है। और बहुत इसमें ऐसी चीजें, जब मैंने इसको पढ़ा, होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया, होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि इसका मेन मतलब क्या है, यहाँ पे खुदावंत बात क्या कर रहा है। वो जीवन का जो पेड़ है जो स्वर्ग लोक में है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फल खाने को दूंगा। वो खा के एक आत्मा है, वो तो जीवनदायक है, उस आत्मा का तो हमेशा जीवन है। तो वहां पे अनंत जीवन कैसे, वो मरेगी नहीं, वो तो ऑलरेडी मर के अगर हम ऊपर जाएंगे तो वो तो अनंत जीवन वैसे ही हो गया, पर वो उस और अनंत जीवन कैसे, क्या हमें यहां मिलेगा या स्वर्ग लोक में मिलेगा। ये क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाशित वाक्य, इसको पढ़ना। अगर किसी को पता चले तो मुझे जरूर बताए। जो परमेश्वर ने मुझे रहस्य बताया, इसलिए आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें कि क्या हो सकता है। और बात हम कर रहे थे कि विवाह भोज की, और यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको जो वस्त्र दिए हैं, जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम कैसे मेरे बीच में से होके खुदावंत के पास, अगर परमेश्वर खुद चल के आपके पास आ रहा है, आपको पता है आज खुदावंत खुद चल के हमारे पास आ रहा है, हम उसे अपना नहीं रहे, उसका वो दरवाजा, दिल का दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, आप दरवाजा खटखटाएंगे लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलेगा, वो बंद हो जाएगा।
आज समय है, वो दरवाजा अगर खटखटा रहे आपके दिल का दरवाजा, तो उसे खोल दे, उसे ग्रहण करें। लेकिन जब वो वक्त आएगा, आप खटखटाएंगे तो वो खोलेगा नहीं, क्योंकि समय वो जा चुका होगा। हालेलुया। मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीष को पाया होगा। आज सिर्फ इतना ही। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दे। मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारी बरकत को पाया है। इसलिए यहाँ जाने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस लाइव को बाद में देखें, एक चीज कहना चाहती हूँ, क्रिसमस मना रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्रिसमस खुदा को तभी अच्छा लगेगा जब आपका जीवन पवित्रता में होगा, जब परमेश्वर ने कहा कि आप विचार से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, चोरी से दूर रहें, किसी के लिए भी बुरा मत सोचें, बुरा मत करें, बुरा मत बोलें, तभी ये परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, अगर आप उस पे चलते हैं तो ये खुदावंत को पसंद है। वरना आप सिर्फ बाइबल स्टडी करेंगे या खुद चर्चिस जाएंगे और कुछ भी नहीं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे बस, लेकिन आप वो स्वर्ग तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अच्छा है कि परमेश्वर अगर आपको ये समय दे रहा है तो उसमें ये समय को अच्छी तरह से व्यतीत करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी खुदावंत, आज का वचन पिता इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर बरकत और आशीष का कारण ठहरे मेरे खुदावंदा। और मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने मेरी अगुवाई की मदद की, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जितने लोग जुड़े थे, आप उन्हें बरकत और आशीष देना मेरे सामर्थ्य पिता। ये पूरी टीम मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर आशीष ठहरे मेरे खुदावंदा। पिता परमेश्वर प्रेयर ग्रुप जीसस टीम पिता परमेश्वर तेरे कामों में भरती जाए मेरे सामर्थ्य पिता। ये पूरी टीम पिता परमेश्वर जो तेरे कामों को करती है मेरे पिता परमेश्वर, आप इन्हें इनका प्रतिफल देना मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। बहुत सारी रूहें इनके द्वारा बचाई जाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मदद करना और सहायता करना पिता। तमाम लोग जितने लोग जुड़े हैं पिता, आपका पूरा आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक पिता परमेश्वर लोगों पे ठहरे मेरे खुदावंदा। और जो लोग सच्चाई पे चलते हैं मेरे खुदा, एक बड़ी आशीष उनका हिस्सा होने पाए पिता इस साल मेरे पिता खत्म होने से पहले। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मेरे खुदावंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ और रिलीज करती हूँ। जितने लोग यहाँ पे जुड़े सच्चाई के साथ जो चलते हैं यीशु मसीह के नाम से, मैं उनकी जिंदगियों में बोलते हैं आप वो परमेश्वर की आशीष को इस साल को खत्म होने से पहले अपनी जिंदगियों में देखोगे। खुदावंद आपको वो महान अनुग्रह खुदा आपको अपना दिखाएगा, जलाल दिखाएगा और आप खुद देखेंगे कि वो एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस बरकत और आशीष के लिए। अब्बा जी मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार मैं फिर से ब्रदर आशीष जी का थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया, इस योग्य समझा कि मैं खुदा के कलाम को सुना सकूं। मैं आपका पूरी टीम का थैंक्स करती हूँ। और जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं मेरे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा ताकि खुदावंद के और कामों को कर सकूं। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की बेहद जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।